Namaskar friends, once again welcome back with another topic. Today's topic is facing an audit. In this session we are going to discuss about the introduction about the audit, what is the purpose of audit, what different audits we face, then how to prepare for the audit, that is pre-audit preparation, during audit and post-audit preparation. After that, don't forget to be there with me till the end so that you can get some tips, that is do's and don'ts of the audit. Right? So let us begin. What do you mean by audit? Audit means a planned, systematic review or check of your system, of your operations, of your procedures in order to monitor the compliance with or the effectiveness of your specified standards, that is predefined standards. So this is meaning of the audit. What audit we face? We face regulatory audit, we face customer audits, and we face internal audits. Why audit? We will discuss one by one. That is first, regulatory audit. Why regulatory audits are conducted? Why regulatory authorities come to visit our site, audit our site? Mainly to verify the compliance. Before that, to issue and license, approving a new facility, or sometime in case of complaints, in case of adverse event, for the investigation purpose. After that, we face customer audits. Why customer audit? Customer conduct our site audit to assess our facility about the compliance status of the site, about our capabilities, capacities, or feasibility with respect to the business they want to do with us. And once a facility is approved, then periodic audit to check the post-audit effectiveness or post-audit follow-ups. Why internal audits? Internal audits is an opportunity to comply with the regulatory requirement before regulatory or authorities or customer visit our facility, audit our facility. It is one kind of gap assessment. It will improve our confidence as well. Internal audit generally conducted periodically so that our site is maintained in its compliance status. And this is the good opportunity to improve ourselves for the expectations of the regulatory, for the expectations of our customers. Audit types. Generally, apart from this customer, regulatory and self-inspection, audit type is split into two categories, that is vertical audit and horizontal audit. Vertical audit is audit of several systems in one department, and horizontal audit means audit of several departments for the one compliance or one system. That is, in order to verify the compliance status, auditor visit different departments. And in case you want to audit a department, for example quality control, for all systems like compliance with QMS, compliance with regulatory requirements, compliance with GMP requirements, compliance with interdepartmental activities. So that way audit can be conducted in vertical or horizontal way. Generally, horizontal way of auditing is preferred. Key for successful audit. What is the key? Key is preparation. If you are prepared well, there are the chances of successful audit increases. Then prepare in time and prepare to win. And while preparation, keep in mind that you are preparing for the compliance
and in order to comply with the requirement, you have to prepare keeping in the mind that dedication, discipline and delegation is the key. Once you delegate the job to your subordinates, they should complete with dedication considering the discipline requirement. Then you will be able to comply with the audit requirements and you will be able to convince the auditor during the audit. So audit preparation is the key for success of the audit. Now let us discuss about the audit preparation. Preparation before auditing, that is pre-audit preparation, during audit and post-audit preparation. Let us discuss one by one. In case of pre-audit preparation, identify and nominate inspection readiness team leader. That means you have to dedicate someone from each department as a team member, and generally quality assurance head will be the team leader or plant will be the team leader for the pre-audit preparation. Then you have to define the host who will take care of audit before, during and after audit as well. Then control room in charge. Control room is the room where you have the all documents and their in charge should be aware of all documents and their locations. So he is the control room in charge. And you have to appoint the subject matter experts. For example, if the question is related to HVAC system, HVAC system, then engineering person should talk about that. If question is related to production, manufacturing process, then production in charge should talk. If question is related to quality assurance, QMS, GMP, in that case, QA person, QA manager should talk. If question is related to method validation, question is related to quality control activities, then QC manager or validation manager should talk. So, who is the subject matter expert? So you have to define the subject matter experts, right? And in entire procedure, you need a scribe who write each and every observation reported by the auditor. So before audit, you have to do this exercise. Apart from this, we need someone to escort. Escort generally who carry the auditor during the tour and who represent the facility. Usually senior management should be escort. Runners. Who is the runner? अगर आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट के टाइम पे आपको कुछ चीज ऑडिटर ने मांगी, तो वो टाइम पे वो लोकेशन से कंट्रोल रूम तक या वो लोकेशन से कॉन्फ्रेंस रूम तक जो इंफॉर्मेशन कैरी करे, जो डॉक्यूमेंट लेके आए, दीज पर्सन्स आर रनर. और वो रनर भी एक्सपर्ट होने चाहिए. अदरवाइज जनरली रनर फॉरगेट टू फॉलो द गवर्निंग प्रोसीजर और उसमें अपने को ऑडिट में ऑब्जर्वेशन मिल जाते हैं. रनर एक्सपर्ट होने चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन में है, आप अगर बाहर जा रहे हो तो गवर्निंग प्रोसीजर फॉलो करो, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करो, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करो. तो रनर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. और उनको जो मैसेज दिया है, उनको जो मांगा है, वो समझ में आए, तो आपको रनर भी आइडेंटिफाई करके रखना है. अगर प्रोडक्शन में से बाहर जाना है तो कौन रनर है, वेयर हाउस से बाहर जाने वाला, अंदर आने वाला कौन रनर है, वो आपको डिफाइन करना है प्री ऑडिट प्रिपरेशन के दौरान. इसके बाद आता है स्काउट. स्काउट कौन है? इट्स लाइक पायलट्स कार. ये पायलट कार क्या है? ये अगर सेना अपना कोई भी फोर्स भेजने से पहले क्या करती है, कोई गुप्तचर भेज देते हैं कि आप देख लो भाई क्या करना है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, ऑल राइट, सिग्नल आया. तो यहां पे कैसे ये स्काउट क्या काम करता है? ये डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में जाता है, देखता है कि सारे सिचुएशन अंडर कंट्रोल है कि नहीं है. अगर नहीं है तो अलर्ट करता है वो टीम को कि ऑडिटर आ रहे हैं, बी रेडी फॉर दैट. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज स्काउट पर्सन्स. मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम, इन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई who will be there in the meeting room at opening meeting and as well as during the closing meeting. आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस किस को बुलाना है. अदरवाइज क्या होता है, रूम की आपकी कैपेसिटी है 10 लोगों की, 25 लोग आके खड़े हो जाते हैं, दैट गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए आपको मीटिंग रूम का भी अरेंजमेंट देखना चाहिए. उसके बाद एक्सटर्नल अरेंजमेंट. एक्सटर्नल अरेंजमेंट जनरली
जो आपके एचआर के पर्सन है वो करते हैं, जैसे कि अकोमोडेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, और दूसरा एक चीज है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। और अगर आप ऑडिटर आपके यहाँ पे आके एक नाइट पहले रुका है तो वहां पे आप ट्राई करो या नेट पे जाके सर्च करो कि ऑडिटर का बैकग्राउंड क्या है, इज ही फ्रॉम द क्वालिटी कंट्रोल बैकग्राउंड, इज ही फ्रॉम द प्रोडक्शन बैकग्राउंड। तो आपको आसानी होगी प्रिपरेशन में। तो आप थोड़ा ऑडिटर का बैकग्राउंड और उसके होस्टिंग के लिए ये एक्सटर्नल अरेंजमेंट की बहुत जरूरत होती है। देन कंट्रोल रूम के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कंट्रोल रूम में सारे डॉक्यूमेंट के प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए सो दैट यू कैन सेव द टाइम टू फाइंड आउट द डॉक्यूमेंट। मांगा हुआ डॉक्यूमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जनरली विद इन 3 मिनट्स, अगर कॉन्फ्रेंस हॉल में या मीटिंग रूम में आता है, इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज अ साइन ऑफ गुड ऑडिट प्रिपरेशन। तो आपको कंट्रोल रूम का इंचार्ज भी बनाना है और उसका भी प्रिपरेशन करना है बिफोर ऑडिटिंग। और दूसरा एक है, आप अगर बड़े ऑडिट के लिए जा रहे हो, रेगुलेटरी ऑडिट के लिए जा रहे हो या फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो, तो उसमें आपका मॉक इंस्पेक्शन इंटरनल टीम के साथ होना चाहिए। एक डेमो देना चाहिए कि ऑडिट में आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी टीम कितनी कैपेबल है, आपको पता चल जाएगा कहां कहां करेक्शन करना है, आपको पता चल जाएगा कहां कहां पे गैप है। सो इसके लिए मॉक इंस्पेक्शन इज जरूरी। तो ये रहा आपका प्री ऑडिट प्रिपरेशन। प्री ऑडिट प्रिपरेशन में अपने को और एक बात ध्यान में रखनी है, ऑडिटर क्या क्या चीज देखते हैं। ऑडिटर कहां पे देखेंगे? ऑडिटर जनरली देखते हैं कहां पे, आपको जहां पे पेशेंट और आपका कस्टमर रिस्क पे जाएगा, ऐसी चीजें ढूंढते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, हमारा क्यूएमएस सिस्टम, जहां पे डिविएशन है, चेंज कंट्रोल है, मार्केट कंप्लेंट है या इंसिडेंट्स है, ऐसी चीजों को वो देखेंगे। ये देखेंगे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, तो ये पूरा एंटायर ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके रिलेटेड जो सिस्टम है वो देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, प्रैक्टिसेस फॉलोड ड्यूरिंग द ऑडिट। ये भी ऑडिटर का एक एरिया है। तो उसके लिए क्या हो रहता है अपने पास, इंस्ट्रक्शन किस में आएंगे, एसओपीज में। तो आपके उससे रिलेटेड एसओपीज, ऑपरेशन रिलेटेड एसओपी देखेंगे, ऑपरेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक बैच डॉक्यूमेंट्स बैच रिकॉर्ड देखेंगे। तो ऑडिटर ये चीजें देखेगा। तो आपको किसी भी ऑडिट में मिनिमम चीजें क्यूएमएस, बैच रिकॉर्ड्स, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, हेल्थ चेकअप्स, पेस्ट कंट्रोल्स, ये सारी चीजें आने ही वाली है कंपलसरी। और फिर उसके बावजूद वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन एक्टिविटीज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो मांगने वाला है। तो ये जो कोर एरियाज है जहां पे ऑडिट हर ऑडिटर जाने वाला है, तो यू हैव टू बी रेडी विथ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ड्यूरिंग द ऑडिट। मैं प्रिपरेशन क्यों बोल रहा हूं, दिस प्रिपरेशन इज लाइक एक्टिविटी। तो हमको जो एक्टिविटी ऑडिट के टाइम पे ड्यूरिंग द ऑडिट करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑडिट डे के दिन क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑडिट डे के दिन क्या करना है, तो रिसीविंग द ऑडिटर एट होटल और एट सिक्योरिटी गेट। अगर वो डायरेक्ट अपने व्हीकल से आ रहा है तो सिक्योरिटी गेट पे, अपना हमारी तरफ से अगर अरेंजमेंट करना है तो एट होटल और एट डिफाइंड लोकेशन उसको रिसीव करना है। ग्रीटिंग बाय द हायर मैनेजमेंट, तो ये होस्टिंग का पार्ट है, वो अपने को करना पड़ेगा टू बिकम कंफर्टेबल। आप उसको भी कंफर्टेबल होना, हमें भी कंफर्टेबल होना उसके लिए। देन वंस यू एंटर इन द मीटिंग, देन प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन के बाद उनको पूछो, प्रेजेंटेशन से पहले भी उनको पूछो, शुड आई स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, इंट्रोड्यूस करो एक दूसरे को। इंट्रोडक्शन के बाद उनको सीक्वेंस, ऑडिट का फ्लो वो कैसे जाना चाहता है, तो उसको इट शुड बी हिज चॉइस, उनका चॉइस होना चाहिए, ना कि हमारा। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमको प्रोडक्शन के टूर पहले करना है, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन ही हैज टू मेक और शी हैज टू मेक। तो ऑडिटर को उसका डिसीजन लेने दो। अगर वो चाहता है कि मैं प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, लैबोरेटरी में ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, तो उनको करने दे। और ये राउंड खत्म होने के बाद बैक टू द मीटिंग रूम एंड एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग मीटिंग होगा। क्लोजिंग मीटिंग में वो अपने ऑब्जर्वेशन लिखेगा। यहां पे 2-3 चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। वो ये चीजें हैं कि आप अगर ऑडिटर कुछ लिख रहा है तो डोंट पीप आउट, वो पीछे जाके खड़े मत हो जाओ कि क्या क्या कर रहा है, क्या क्या देख रहा है, वो क्या क्या लिख रहा है, जरूरत नहीं। मैं क्लोजिंग मीटिंग में वो बताने वाले। और दूसरा हाई अलर्ट ये है, कभी भी गलती से भी ऑडिटर के सामने लोकल लैंग्वेज में बात मत करो, अदरवाइज ये समझेगा कि ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं, तो वो मत करना। डूज एंड डोंट्स में अलग से मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा ये, लेकिन यहां पे मुझे ध्यान आया तो मैं आपको बता रहा हूं।
नाउ डिस्कस अबाउट द पोस्ट ऑडिट प्रिपरेशन। ये थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। ये पोस्ट ऑडिट में क्या प्रिपरेशन करना है, तो यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने प्री ऑडिट प्रिपरेशन कर लिया, हमने ऑडिट भी अच्छा चला गया, लेकिन अगर पोस्ट ऑडिट प्रिपरेशन में गड़बड़ हो गई तो रिजल्ट गड़बड़ वाले आ सकते हैं। तो पोस्ट ऑडिट प्रिपरेशन में दो टाइप है, एक तो व्हाइल अवेटिंग ऑडिट रिपोर्ट एंड दूसरा है कि पोस्टमार्टम। तो जब तक वहां से ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ रहा तब तक क्या करना है, सबसे पहला जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशन है आपके हायर मैनेजमेंट को इंटीमेट कर दो और पैरेलली एंटिसिपेट करो कि ऑडिट में ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आने वाला है। क्लोजिंग मीटिंग में तो उन्होंने बताया रहता ही है, लेकिन उसके बावजूद अपने को ये एंटिसिपेट करना है कि ये ऑब्जर्वेशन आया तो हमें क्या क्या लिखना है। उसके बाद जो इंसिडेंट से डेविएशन से हो इमीडिएटली भरो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आने में 10 दिन लगेंगे और आप 10 दिन के बाद इंसिडेंट डेविएशन भरते हो तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो यहां पे आपको इंसिडेंट फाइल करने हैं और प्रिपरेशन ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए आपको। दूसरा पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम में क्या करना है, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट गुड, वो अपने आप को अपने इंटरनल टीम के साथ डिस्कस करो। अगर एक अल्टरनेटिव कुछ ऑप्शन चाहिए हमरे फ्यूचर के लिए, ये गलतियां अगर आज के डेट में ऑडिट में की है तो नेक्स्ट के लिए हमको ये गलतियां नहीं करनी है, तो वो केस में हमारे लिए क्या बेस्ट है वो अपनी टीम को समझाओ और जो गलत हुआ उसके ऊपर एक्शन इमीडिएट चालू कर दो। ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले ही आपको करना है, राइट। और फाइनल रिपोर्टिंग ऑफ कॉम्प्लायंस विद द ऑडिट। जैसे रिपोर्ट आए आपको उसका कापा भरना है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और ऑडिटर को पोलाइटली रिस्पॉन्ड करना है। नाउ डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज डूज एंड डोंट्स ऑफ द ऑडिट। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द ऑडिट। व्हाट आर द डूज? डूज में ये आता है कि बी फ्रैंक, बी पोलाइट, बराबर। फ्रैंक का मतलब यह नहीं कि जो चीजें उन्होंने पूछी नहीं उनको बताओ। फ्रैंक का मतलब यह है कि जितना पूछा गया है उसका आंसर दे दो। बी पोलाइट, उसके साथ ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको कि आप आर्ग्यू कर रहे हो, तो इतना पोलाइटली उसको आप आंसर करो। सपोर्टिव, उसको कुछ चाहिए, वो मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट दे दो। गलतियां निकली तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर डॉक्यूमेंट देने में डिले कर रहे हो तो भी दिक्कत आ सकती है। सो बी सपोर्टिव। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज ही उसको बता रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो वेन एवर यू आंसर विथ कॉन्फिडेंट। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन जितना पूछा है उसको समझो और फिर आंसर करो। अगर आप वो मैटर में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो तो आप पोलाइटली बोल सकते हो कि दिस आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई रिक्वेस्ट माई सीनियर, ही विल आंसर द क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। क्लियरली क्वेश्चन समझो। अगर नहीं समझ में आया है तो आस्क हिम पोलाइटली कि मैं समझा नहीं हूं, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, और उसके बाद आंसर दे दो। सो दीज आर द डूज। फ्यू मोर डूज विल डिस्कस। ऑडिट के टाइम पे आपको दो टीम रखनी है। दो टीम इसलिए रखनी है, कभी कभी क्या होता है अगर ऑडिटर दो है तो उसमें एक किसी का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रहेगा, एक प्रोडक्शन का रहेगा। हो सकता है दोनों भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तो दोनों स्प्लिट होके दोनों दो एंड पे जाएंगे टू सेव द टाइम। तो अपने पास भी दो टीम रखना और दोनों टीम में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इक्वली डिवाइड करके रखना। तो क्या हो जाता है, अपने लिए वो काम हमारा आसान हो जाता है, हम प्रिपेयर्ड रेडी हो जाते हैं। और दूसरा, जब डॉक्यूमेंट रिव्यू चल रहा है, दिस इज मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ द ऑडिट। डॉक्यूमेंट रिव्यू के टाइम पे आप वहां पे बाजू में बैठो, उसको सपोर्टिवली बोलो, वो जो मांगता है उसका एक्सप्लेनेशन दे दो, वो जितना पूछता है उनको दे दो, उनको समझाओ कि ये चीज क्या है। समझाने का मतलब हम ज्यादा एक्सपर्ट है ऐसा बता के नहीं समझाना, लेकिन उनको हमारा सिस्टम समझ में आया उतना ही बताना है। दूसरा, कंट्रोल रूम जो है अपना, कंट्रोल रूम का जो भी आदमी है वो ये टाइम पे जहां पे डॉक्यूमेंट रिव्यू है वहां पे हाई अलर्ट पे होना चाहिए। ही शुड बी ऑन द टोज कि इतना मांगा तो क्विकली आया, ये चीज मांगी है बीएमआर मांगा बीएमआर आया, चेंज कंट्रोल मांगा चेंज कंट्रोल आया, डेविएशन मांगे डेविएशन का कॉपी आया। तो आप अगर डॉक्यूमेंट शो करने में डिले कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास या तो डॉक्यूमेंट नहीं है या आप मैनिपुलेट करने के लिए टाइम ले रहे हो। तो ऐसा मत करो, इमीडिएटली डॉक्यूमेंट दे दो। ऑब्जर्वेशन आए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डिले किया और उसके दिमाग में ये गया कि आप कुछ छुपा रहे हो, दैट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो ऐसा नहीं होना। और
जितना भी टाइम आपको दिया है उसी टाइम में आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलने में दिक्कत आनी है या दूसरे किसी लोकेशन पे है, पुराना डॉक्यूमेंट मांगा तो आपने शायद उसको दूसरे लोकेशन दिया, तो सामने से ऑडिटर को बोल दो कि ये अदर लोकेशन पे है, इट विल टेक टाइम, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अनदर एरिया इज डोंट्स। डोंट्स में क्या है? डू नॉट लाई। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि अरे यार मैं अगर सच बोल दूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अगर सही हो तो डू नॉट लाई। सेकंड ये है डू नॉट आर्ग्यू इवन इफ यू आर करेक्ट। इसका मतलब क्या है? वो गलत बोलता जाएगा, हम सुनते जाएंगे? नहीं, पोलाइटली डिसएग्री करो। आर्ग्यू करना और डिसएग्री करना अलग है। आर्ग्यूमेंट लीड्स टू ऑडिट रेजिस्ट हो जाएगा और फिर आगे का आपके प्रोसीजर है उसमें दिक्कत आ सकती है। सो उसके साथ आर्ग्यू मत करो, वहां पे डिसएग्री करो, आगे बढ़ो, रुको मत वहां पे। नहीं तो क्या हो जाएगा? इट विल ब्रेक ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो आगे के सारे डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा कुछ निकालने की कोशिश करे। और मैंने बीच में जो बोला था, अनऑफिशियल चीजें ऑडिटर के साथ मत डिस्कस करो, जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वो जो मीटिंग रूम है या कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पे पूरा सन्नाटा छा जाता है, साइलेंस आ जाता है। टू ब्रेक दैट साइलेंस जनरली वी आस्क सम अनऑफिशियल क्वेश्चंस। हम पूछते हैं तो वो मत पूछो, जरूर नहीं हो। साइलेंट है तो रहने दो, ऑडिटर खुद साइलेंट ब्रेक करेगा, आपने को नहीं करना है वो साइलेंट ब्रेक, तो वो है। दूसरा, लोकल लैंग्वेज में बिल्कुल बात मत करो। कभी कभी क्या होता है, ऑडिटर प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होने के कारण आपने को पता ही नहीं चलता है कि वो आपकी लैंग्वेज भी समझ में आए उसकी। और दूसरा, अगर नहीं समझ में आती है तो उसके दिमाग में यह आ सकता है कि आप कुछ मेरे बारे में गलत बोल रहे हो, या आप कुछ छिपा रहे हो, या डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है इसलिए आप डिस्कस कर रहे हो। सो डोंट डू दैट। दीज आर सम डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑडिट। लेट अस डिस्कस अबाउट द बेनिफिट ऑफ सक्सेसफुल ऑडिट। सक्सेसफुल ऑडिट के बेनिफिट्स है, फर्स्ट बेनिफिट इज यू आर गोइंग टू गेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेकंड बेनिफिट, यू आर गोइंग टू गेट बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर आपके पास पहले बिजनेस है तो बिजनेस कंटिन्यूटी मिलेगा। तीसरा, आपको ऑडिट के कारण ही अप्रूवल मिलते हैं, जैसे कि टीजे, डब्ल्यूएचओ जिनेवा है, एमएचआर है, यूएसएफडी है, ऐसे अप्रूवल्स एक्रेडिटेशन कहां से मिलते हैं? ये थ्रू ऑडिट। अगर सक्सेसफुल ऑडिट मिला तो आपको ये एडवांटेज मिलता है, और ये लेबल लगे तो आपने मार्केट में आप लीडर बन जाते हो। दीज आर द सम ऑडिट्स। फ्यू मोर बेनिफिट्स आर, इंटरनल ऑडिट हो या एक्सटर्नल ऑडिट हो, हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, अपने प्रॉब्लम एरियाज पता चलते हैं, अपने गैप्स पता चलते हैं। ऑडिट इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट, सो थिंक इन दैट वे। हमको रिकॉग्निशन मिलता है, प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत मिलती है, सॉल्यूशन भी कभी कभी ऑडिट दे देता है। और दूसरा, सक्सेसफुल ऑडिट के बाद अपने एम्प्लॉय का मोरल बढ़ जाता है, उसको प्राउड फील होने लगता है, एंड उसकी वजह से उसका काम करने का कैपेसिटी, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। So these are few benefits. Thank you for watching. Once again, I request you to view all my videos. पहले वाले भी वीडियोस देखो। आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज click on the bell icon so that you get the notification for all my upcoming videos. Thank you.